Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, we'll start now. Am I audible? Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Okay. Let's continue. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yasrin, you had a question you want to ask now? Ask. No, it was a very normal question. We were learning about this case, right? Yeah. So, yeah, what I understood, just saying that before he was a believer, then after this ego issue happened with Abu Bakr radiallahu anha, he went to Al-Assad team, right? No, there was no ego issue with Abu Bakr radiallahu anhu. It was he was one of the followers of Al-Asadi teams, Al-Aswadi actually. And then Yeah. he had a problem with Fairuz. Okay, yeah, okay. Okay, and so my question is like, there are Muslims who, who name their kids or name themselves as Qais. So is it allowed? See, now the problem with us is, Rin, this is a very general question, and I will tell you, isko two parts mein I can explain it to you. One is like what is recommended in regards to naming a baby, and it's one of the rights of the baby. The baby should be given names of सबसे जो ज़्यादा preferred thing है वो है कि after the prophets and the messengers, ठीक है? उसके बाद some real good pious people, sahabas and khalifas and things like that, और अच्छे सिफत और अच्छी मीनिंग के नाम. अब ये होता है हम लोगों के पास प्रॉब्लम ये है कि वी हैव लॉट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज इन दिस रिगार्ड आल्सो. तो हम लोग जो है ट्रेंड के हिसाब से या किसी ने कुछ कह दिया उसके हिसाब से कुछ भी नाम रख देते हैं विदाउट knowing the meaning, the actual meaning. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे भी एक हदीस थी कि some people had named kids with very bad meanings. मसलन एक बच्चे का नाम कुछ वॉर के हिसाब से हर्ब का रखा था तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको चेंज करवा दिए थे. तो इसीलिए हम लोगों का ये फर्ज है कि we should do some research before naming the baby because this thing doesn't change every now and then. This goes till the end. आपके सारे official documents में everything this is going to be there. So it is our responsibility. It is the parents' responsibility. It is the responsibility of the elders कि वो लोग जो हैं वो करें. और कई बार जो है काफी फैमिलीज में अपने ग्रैंडफादर्स या ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के नाम रखते हैं वो लोग. तो इट इज एब्सोल्युटली ऑलराइट जब तक कि मीनिंग उसका ठीक हो. रही बात कैस की तो अभी हमें अब जाकर पता चल रहा है कि कैस एक ऐसा कैरेक्टर था जो नेगेटिव था बट बाद में इवेंचुअली ही बिकेम पॉजिटिव, ही बिकेम अ बिलीवर एंड देन ही स्टेड अ बिलीवर. So alhamdulillah there is no harm in naming somebody, but again what is the intention, किस नियत से किस एंगल से वो नाम रखा गया है. अब मुझे जहां तक कि मेरा सवाल है मैंने आज तक के वो जो लैला मजनू है उसमें कैस का नाम सुना है, उससे पहले मैंने नहीं सुना. Yeah, I know people. इसीलिए I mean अभी जब सुन रहे हैं तो he was in the opposite team, so I was like okay. तो मुझे वो बस कंफर्म करनी थी. हाँ नहीं बस हम लोगों का फर्ज ये है कि हम लोग बेहतरीन बहुत सारे खूबसूरत नाम है कुरान के अंदर ब्यूटीफुल नाम है, हदीसों में है, सहाबास के आप ले ले कोई अच्छे यानी जिससे आप इन्फ्लुएंस हुए हो. लाइक आई विल टेक माय पर्सनल एग्जांपल. मैं जब भी कुरान पढ़ती थी आई वाज वेरी मच इंप्रेस्ड बाय द पर्सनालिटीज ऑफ कोर्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इब्राहिम अलैहि सलाम एंड ऑल दिस. तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के उसी तरीके से नाम सजेस्ट किए अपनी फैमिली को एंड दे अग्रीड. सो माय एल्डर वन इज मोहम्मद, the younger one is Ibrahim, and inshallah now Musa is on the way. So the thing is that we have to decide what we want. We want the Ahlul Quran, we want the Sifat. ताकि और एक इन्फ्लुएंस होता है कि बच्चे जब भी जैसे कभी हम कुरान तफसीर लगाते हैं या तर्जुमा लगाते हैं तो उसमें वो बार बार नाम आता है. They feel very happy. They will be blushing. Oh, my name is appearing in the Quran. So it's a beautiful thing. गर्ल्स के हम लोग रख सकते हैं मरियम, आसिया, खदीजा. यानी कुरान में अल्लाह ताला ने मेंशन किया है तो बहुत बड़ा शरफ हासिल है ना ये. तो बट द थिंग इज अगेन इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग. पेरेंट्स को हस्बैंड एंड वाइफ को आपस में डिसाइड करना है, अच्छी खासी रिसर्च करनी है. एंड देन आई वुड आल्सो सजेस्ट कि हर एक मामला में जैसे मैंने कल बताया था आपको कि इस्तिखारा करें या इन द प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस दिस. तो हर चीज के पीछे इस्तिखारा करें और अच्छी नियत से कुछ रखें एंड इंशाल्लाह उसमें वैसी बरका होगी. इंशाल्लाह आमीन. Okay, let's begin now. Fair judgment between soldiers. During the expedition to Iraq, one of the Al-Muthanna ibn Harisa soldier named Madhur ibn Adi left the army, apparently without permission, and sent a letter to Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. In his letter to Khalifa, Madhur wrote, अभी one of the expedition में ये हुआ कि Al-Muthanna ibn Harisa soldier जो थे
माधुर इब्न आदि, उन्होंने आर्मी को ऐसी सडनली छोड़ दिया, और वो भी विदाउट परमिशन। मतलब यू नो ऑल दिस पीपल दे हैव अ प्रोटोकॉल, एक रूल्स रेगुलेशंस होती है, तो विदाउट गिविंग एन इंटीमेशन बिफोर हैंड उन्होंने बिना परमिशन के आर्मी छोड़ दी। और फिर ही रोट अ लेटर टू अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, एंड व्हाट डिड ही राइट इन द लेटर? ही सेड, वेरीली I am a man from the Banu Ijil tribe, people who are known for remaining steadfast upon their mounts. We are the fighting people, and we are known to attack our enemies in the morning. With me are men from my clan, each one more valuable on the battlefield than 100 other men. I know the land which you are attacking. I am experienced in the art of war, and I am well acquainted with the landscape of the region. So appoint me over the masses of your soldiers. अभी ये हुआ कि मधुर जो थे उन्होंने क्या लेटर लिखा अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को कि मैं इस कौन सी ट्राइब से बिलोंग करता हूँ? बनु इजिल ट्राइब। अब ये ट्राइब जो है इसमें वॉरियर्स थे, बहुत ज्यादा स्किलफुल वॉरियर्स होते हैं। तो वी आर द पीपल, उन्होंने कहा कि जो हम हमेशा स्टेडफास्ट रहते हैं, अपने अपने घोड़ों पे सवार रहते हैं, यानी वी आर नॉट द पीपल हु विल फ्ली, डेंजर देख के भाग जाने वालों में से नहीं, हम डटे रहने वालों में से हैं। और हम हमारे एनिमीज को मॉर्निंग में अटैक करते हैं। हम उस क्लैन से हैं जिसका एक एक बाशिंदा जो है वो नॉर्मल एक आदमी 100 आदमी के इक्विवेलेंट होता है। और जिस जगह पर आप अटैक करने वाले हो उस जगह की लैंडस्केप वगैरह भी मुझे अच्छी तरह से पता है। आई एम एन एक्सपीरियंस्ड इन द आर्ट ऑफ वॉर, और मुझे रीजन के बारे में भी पता है। तो आप मुझे यानी ही वाज एक्चुअली प्रपोजिंग दैट ही शुड बी promoted and be taken as a leader over the masses, यानी वो आर्मी के ऊपर लीडर के तौर पे उसको अपॉइंट किया जाए। Once Madhur left his army, Al-Muthanna felt that it was his duty to notify the Khalifa about what had happened. Al-Muthanna radiallahu anhu wrote a letter to the Khalifa in which he said, अभी उसके ऊपर के जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने, वो अल-मुथन्ना थे, उन्होंने फिर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को लेटर लिखा, एंड ही फेल्ट कि उनको ये डिसीजन लेने से पहले अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना चाहिए था, बिकॉज एज यू कैन अंडरस्टैंड एवरी प्लेस, एवरीवेयर, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम रूल्स एंड रेगुलेशंस टू फॉलो। तो जो हायरार्की होती है फ्रॉम बिलो टू अबव, कम्युनिकेशन हैज टू बी डन बिफोर टेकिंग एनी स्टेप्स। तो अभी ये तो बहुत स्टर्न स्टेप था, वेर ही इज जस्ट रिजाइनिंग फ्रॉम दिस पोजीशन एंड कमिंग आउट ऑफ द जॉब, तो उसने अपने इमीडिएट सीनियर को इन्फॉर्म जरूर करना था। तो इसीलिए फिर Al-Muthanna also wrote a letter to Abu Bakr radiallahu anhu in which he said, verily I'm informing the Khalifa of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam about a man from my tribe called Madhur ibn Adi from the children of Ijil. Very few of his people are with him. He has openly disputed with me and opposed me, and I wanted to inform you about his situation so that you can arrive at a fair judgment regarding this matter. अब उन्होंने क्लियरली इन्फॉर्म कर दिया कि ये अबूर जो है, मधुर जो है फ्रॉम इजिल ट्राइब, और उसके साथ कुछ चंद लोग हैं, उसने ओपनली मेरे साथ डिस्प्यूट किया, मुझे अपोज किया और फिर बाहर निकल गया। तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं ताकि आप जो है एक फेयर जजमेंट इस बारे में करें। अब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का तर्जुमल क्या था? नाउ वी हैड 2 लेटर्स टू रिस्पॉन्ड। अभी हमारे सामने है कि एक लेटर तो वो खुद उसने मधुर ने लिखा था और एक जो है अल-मुथन्ना ने लिखा था। अब as a judge, as the senior most leader, as the खलीफा, उनका क्या रिस्पॉन्स होगा? So उनके पास actually 2 letters हैं जिनको उनको रिस्पॉन्ड करना। He had to handle the matter carefully to benefit from the services of both Madhur and Al-Muthanna. He did not want to hurt their feelings or jeopardize the overall mission of conquering Iraq. In his response to Madhur's letter, Abu Bakr radiallahu anhu wrote, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीडिशन जो इराक में जा रहा था, तो उसके लिए ये दोनों बाशिंदों का होना जरूरी था। He cannot get rid of any one of the army person. तो इसीलिए उनको बहुत tactfully, carefully, without hurting anybody, ऐसा एक कहते हैं कि फुल प्रूफ फॉर्मूला निकाला था जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। So what he responded, he wrote to Madhur, I have received your letter and I have understood very clearly the matters you mentioned. You are indeed as you have described yourself to be, and your clan is a blessed and a good clan. I have arrived at the conclusion that you should join Khalid ibn Walid army. Stay with Khalid as long as he stays in Iraq, and when he departs, depart with him. अब उन्होंने क्या किया उसको to bring the benefits of his army person और उसके खुद के स्किल का जो इस्तेमाल करना था, तो he instead of joining again to Madhur's regiment, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको बोला कि आप खालिद बिन वलीद की आर्मी को ज्वाइन कर लो और आप इराक की रेजिमेंट में तब तक के रहो खालिद बिन वलीद के साथ जब तक कि वो वहां पर है। जैसे ही वो वहां से डिपार्ट होंगे तो आप उनके साथ डिपार्ट हो लो। एंड अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु wrote the following to Al-Muthanna ibn Haris रदियल्लाहु अन्हु,
Verily, your companion from the Ijli clan wrote to me asking me about a number of matters. I wrote back to him, ordering him to adhere to the company of Khalid to fight under his command until I decide what to do about the situation. In this letter of mine to you, I order you to remain in Iraq until Khalid ibn Walid departs from it. And when Khalid leaves Iraq, continue to stay in the place where you are stationed. Indeed, you are deserving of an increase in blessing and you are worthy of all virtues. Simple and sweet and very, very क्या कहते हैं, peaceful solution. दोनों को अलग कर दिए, उसको अलग रेजिमेंट में भेज दिए और इनको कहा कि आप भी इराक में रहें और जब तक कि खालिद बिन वलीद निकल नहीं जाते वहां पर, यू हैव टू स्टे बैक इन इराक. दिस थिंग, और उनको दुआ भी दी. उन्होंने कहा कि यू हैव टू स्टे देयर, यू आर डिजर्विंग एन इंक्रीज इन ब्लेसिंग्स, यानी अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह आपको बरका मिलेगी और आप जो है वर्दी हो ऑफ ऑल दिस वर्च्यूज. सो किसी का भी दिल नहीं टूटा, किसी की भी बेइज्जती नहीं हुई और दोनों भी जो यूजफुल असेट्स थे आर्मी के लिए उसका इस्तेमाल अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने खूब अच्छे तरीके से किया. So you see how the solution is, without hurting anybody's sentiment, without being at a loss, without taking the emotions into considerations. यानी कि अपने दिमागी तवाज़ुन को हटाकर गुस्से में या कोई अलग इमोशनल कैफियत में आकर कोई बेवकूफी वाला डिसीजन नहीं, बड़े हिकमत के साथ, बड़े बसीरत के साथ, एकदम प्यारा सोल्यूशन. A third false prophet. जैसे हमने अभी बीच लास्ट दो पढ़े थे, अल असवदी द फॉल्स प्रॉफिट, फिर एक अल तुहैमा, दो फॉल्स प्रॉफिट, अभी एक थर्ड आ रहा है. Tulayha al-Asadi was the third man who during the final stages of the prophet's life claimed to be a prophet. His full name was Tulayha ibn Khuwailid ibn Nawfal ibn Nadla al-Asdi. During the year of the delegations, the year of 9th Hijri, when delegations from all over the peninsula visited the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to either negotiate terms of peace or declare their entry into the fold of Islam on behalf of their people. अब ये 9 हिजरी का किस्सा है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे और बहुत सारे डेलीगेशंस उनके पास आ रहे थे. 3 चीजों के लिए आ रहे थे. एक तो वो पीस ट्रीटी साइन करना चाह रहे थे, या तो फिर वो दीन में शामिल होना चाह रहे थे अपने लोगों के लिए, और टर्म्स जो है वो ड्यूरिंग दी एंट्री इनटू द फोल्ड ऑफ इस्लाम वो डिस्कस करना चाह रहे थे. So Tulayha जो है, he also visited the Nabi sallallahu alaihi wasallam with other members of the Asad tribe. He belonged to the Asad tribe. The delegates of his tribe extended greetings of peace to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and said to him, "We have come to bear witness that none has the right to be worshipped but Allah Azza wa Jal, and that you are His slave and messenger. Though you were not sent to us." They were not sincere and wanted to give the impression that they were doing the Prophet sallallahu alaihi wasallam a big favor. As a result of their bad manners, Allah revealed this verse. अब आप देखें, ये लोग आए हैं एंड उनका जो तरीका, अगेन मैं आपको कहती हूँ बार बार कि जो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, द वे यू स्पीक, द वे द वर्ड्स फ्लो आउट ऑफ योर माउथ, इट हैज पावर एंड इट इज वेरी वेरी पावरफुल. अब आप देखें ये कितनी बड़ी बात है कि इनकी बदतमीजी, इनकी जो बेहुरमती इन्होंने करने की कोशिश की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस पर वही नाजिल हो रही है. यानी इमेजिन, इट इज नॉट जस्ट द ह्यूमन एंटिटी व्हिच इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, बट अल्लाह अज़्ज़ा व जल डिडंट लाइक इट, व्हिच इज ये छोटा मामला नहीं है. उन्होंने क्या कहा पता है? वो कहते हैं कि हम आपका मैसेज जो है हम उसको उस पर अग्री करते हैं, इवन दो आप हमारे में से नहीं हो, यानी आप प्रॉफिट जो हो आप हमारी क्लैन में से नहीं हो, फिर भी हम इसको एक्सेप्ट करना चाहिए. वो ऐसा डायरेक्टली दिखाना, इनडायरेक्टली दिखाना चाह रहे हैं कि वो दीन एक्सेप्ट करके और बाहर आउटसाइडर के प्रॉफिट को एक्सेप्ट करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक फेवर कर रहे हैं. अब इस पर अल्लाह ताला ने जो वर्सेस नाजिल की, इट बिलोंग्स टू सूरा नंबर 49 वर्स नंबर 17. They regard as favor upon you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that they have embraced Islam. Say, count not your Islam as a favor upon me. Nay, but Allah has conferred a favor upon you, that He has guided you to the faith, if you indeed are true. Yani, the wordings really are very strong, and it shows how upset Allah Azza wa Jalla is with their behavior, with their talks. So, of course, आप यानी वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फेवर नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर फेवर की हिदायत देकर, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर फेवर की कुरान और नबी नाजिल करके. तो दिस इज नॉट द वे टू बिहेव और टू ट्राई टू टॉन्ट अवर नबी. It was when he returned to his homeland that Tulayha not only apostatized but also claimed to be a prophet. इस इंसिडेंट के बाद फिर जो है वो पलट गया. पलटने के बाद उसने अपने आप को
prophet claim कर दिया. By claiming to be a prophet, Tulaiha knew that he would soon be fighting the Muslims. So he set up a military command post in Sumaira, which was an area of land that was a part of Banu Asad territory. अब ये इन लोगों को पता था अच्छी तरह से कि जो मुस्लिम आर्मी है, the moment these guys will declare themselves as a prophet or if they declare themselves as murtad, तो मुस्लिम आर्मी के अटैक के लिए उनको तैयार होना पड़ेगा. तो उसने जैसे ही when he started declaring himself as a prophet, immediately उसने अपने आप को और अपनी मिलिट्री को तैयार करना शुरू कर दिया एक जगह जहां पोस्ट जिसका नाम था सुमेरा, उधर उस एरिया में, और बनु असद की जो टेरिटरी उसके पास में. Allah tested the faith of the people of Banu Asad through Tulaiha. One day they completely ran out of water. Tulaiha gave them a riddle. They played along and were shocked to find that by following the instructions of his riddle, they came across a source of water. It was then that the common masses of the Asad tribe and many Bedouins in the region fell under the spell of Tulaiha and willingly became his followers. अभी अल्लाह ताला जो है ना, ये लोगों की आजमाइश करते हैं, उनके यकीन, उनके फेथ, उनके अकीदे की. और ये हम लोग अपने दौर में भी हम लोग हमेशा नोट करते हैं. वी विल डिस्कस दिस नाउ इंशाल्लाह. बनु असद के लोगों को पानी की जरूरत पड़ी. वो उनका पानी जो था इलाके में बिल्कुल खत्म हो गया था. अब वो तुलैहा के पास गए तो तुलैहा ने उनको एक रिडल दिया. रिडल यानी एक पजल सॉर्ट ऑफ उनको दिया, और वो जैसे जैसे उसको सॉल्व करते गए वो पजल को, तो दे वर शॉक्ड कि जैसे जैसे वो उसको सुलझाते गए वैसे वैसे वो पानी के बिल्कुल करीब पहुंच गए, सोर्स ऑफ वाटर के पास आ गए. और इसके बाद जो ये हमारी जाहिल, जिसे हम जाहिल कौम कहते हैं ना, जिसका जो ईमान और अकीदा है बिल्कुल कमजोर होता है, तो वो ऐसी छोटी मोटी चीजों को देख के उसकी तरफ माइल हो जाते हैं. और ऐसे ही हुआ. असद के जो ट्राइब थे और बहुत सारे बिदून थे आसपास के, वो तुलैहा के फॉलोअर्स बन गए. अभी हम इसे अपने लाइफ के एग्जाम्पल में कैसे ले सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव सीन बैक होम कि ये ऐसे छोटे मोटे करामती बाबा निकल आते हैं, बहुत सारे चप्पे चप्पे पे, हर कोने कोपरे में इस टाइप के बाबा आपको नजर आएंगे. ये कुछ चंद सिली ट्रिक्स करते हैं और उससे माइल होके लोग उनको बड़ा पहुंची हुई हस्ती समझते हैं, एंड देन उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, उनको अपना पीर मान लेते हैं और उनको अंधाधुन फॉलो करते हैं, और उस चक्कर में वो बिदा और शिर्क के पीछे अनौज़ुबिल्लाह मुब्तला हो जाते हैं. अब आप देखें कि जब आपके पास कुरान है, जब आपके पास हदीस है, जब आपके पास उसकी नॉलेज है, हिदाया है, इल्म है, तो फिर आप कैसे गुमराह हो सकते हैं? अब ये गुमराही की वजह क्या है? इसकी वजह प्लेन है, सिंपल है. एक, ईमान की कमी. ईमान की कमी क्यों होती है? क्योंकि इसमें इल्म नहीं है. ईमान की कमी इस वजह से होती है कि इल्म आपके पास, सही इल्म आपके पास अभी तक पहुंचा नहीं है. और इल्म भी ऐसा नहीं जो एक कान से आया दूसरे कान से गुजरा. एक कान से आके आपके दिमाग, आपके दिल, आपके रूह, आपके जिस्म तक पूरा पहुंच चुका हो, आपके डीएनए के अंदर तक पहुंच चुका हो और आपके अमाल के अंदर नजर आ रहा हो, तब यू कैन सी द बार्स ऑफ योर ईमान रेजिंग हाई. कोई भी ऐरी गैरी चलती हवा आई है और लोग उधर उसकी तरफ कहते हैं ना कि माइल हो जाते हैं. अब देखिए ये जो काफिर है या जो नॉन बिलीवर्स हैं, इनका यही मसला है. If you remember, people from India will definitely remember this incident. चंद नहीं, I think बहुत टाइम हो गया. आपको याद है वो जो मूर्तियां दूध पीने शुरू कर दी थी तो कतारें लग गई थी लोगों की, और वो they don't know that the function or the what do you call, the characteristics of the stone is such that it is porous and it will absorb heat. के मारे वो heat up हो गए stones and the liquid, whatever liquid you'll bring, it will absorb. but ये लोग उसके ऊपर उनकी बड़ी dedication और devotion और श्रद्धा लग गई. and आप हर आए दिन देखोगे कि कुछ ना कुछ पत्थर, कोई ना कोई, किसी ने टमाटर काटा तो उसके अंदर कोई शेप निकल आया, किसी ने कोई कद्दू काटा तो उसके अंदर कोई लिखावट नजर आई. I mean, Alhamdulillah, we as Muslims, we don't need these reasons, this justification to believe in Allah Azza wa Jal. We are complete, our deen is complete, our yaqeen is Alhamdulillah pukhta. But जिनके पास ये एंकर नहीं होता ना दीन का, तो वो इधर से हवा आई तो वो कटी पतंग की तरह कभी उधर उड़ गए, कभी इधर उड़ गए, कोई भी उनका ठिकाना नहीं है. And the same goes for the Westerners, जिनका जो एथिस्ट हैं, जिनके पास रिलीजन की कोई डोर और एंकर नहीं है, वो भी हर एक, यहाँ से कोई आया तो उधर उड़ गए, वहां से कोई आया तो उधर उड़ गए. इसमें मजा नहीं है, इसमें ना सकीनत है, ना आप मुतमईन फील करेंगे, ना यू फील गुड अबाउट एनीथिंग इन योर लाइफ. सिर्फ जानवरों की तरह आपकी जिंदगी चल रही होती है और आप बस
यहाँ से वहां से यहाँ भटक रहे होते, किसकी तलाश में? सुकून की तलाश में। लेकिन सुकून कहाँ है? सुकून अल्लाह के जिक्र में है, सुकून अल्लाह के कुरान में है, सुकून अल्लाह से रिश्ता जोड़ने में है। लेकिन ये जब तक लोगों को समझ आता है तब तक के उनके जिंदगी का टाइम खत्म होने लगता है। तो समझदार और इंटेलेक्चुअल वही है जिसको अल्लाह ताला वक्त पे हिदायत दे दे, वक्त पे सही इल्म दे दे, और वो बंदा अपने अमाल को सुधार ले। मैं अल्लाह मेक अस अमंग दोज जो कि सही इल्म और अमल के साथ अल्लाह को राजी करने में जुटे हैं। आमीन या रब। सो एनीवेज, ये असद के लोग जो हैं वो ये अल्लाह ताला की जो आजमाइश थी उसमें खुले खुले फेल हो गए। एंड दे बिकेम द फॉलोअर्स ऑफ तुलेहा। Deeming himself to be a legislator of religious law, Tuleha told his people that it was no longer compulsory to prostrate during prayer. He claimed that revelation came down to him from the heavens, and to prove the claim, he composed a number of verses. Even though the verses he recited were trite and nonsensical, people still followed him out of a sense of tribal loyalty. अब आप देखेंगे कितने चालाक, कितने शातिर होते हैं। शैतान also gives them lot of boost, you know. अभी इसने क्या किया, इसने अपने लेजिस्लेटर और रिलीजियस लॉज बनाने शुरू कर दिए। इसने कहा कि कंपलसरी नहीं है कि आपको सजदा करना जरूरी है इबादत में। और उसने क्या किया, ये कहता है मुझे ये ऊपर से जन्नत से वही आई है इसके बारे में, और उसको क्लेम करने के लिए उसने चंद अपनी ही मनगढ़ंत वर्सेस भी क्रिएट कर दिए। अब वो बिल्कुल नॉनसेंसिकल थी, उसकी कोई भी लॉजिक नहीं था। और यानी यू नो वेरी वेल अल्लाह ताला हैज चैलेंज्ड एवरीवन कि कोई एक आयत भी अल्लाह ताला की तरह कुरान की जैसी आयत है वैसे ही लेकर आ जाए, जमा होकर लोग अपने सारे दिमाग और स्किल्स लगा दें। लेकिन वी कैन नॉट, बिकॉज इट्स अ बुक ऑफ अल्लाह, इट्स अ वर्ड ऑफ अल्लाह, वी कैन नॉट डू इट। लेकिन इसने बेवकूफ ने अपने खुद की वर्सेस बना दिए नॉनसेंसिकल, और लोगों ने उसको बिलीव भी कर लिया। सो आप देख लें कि किस तरीके का ये चक्कर है, यानी शैतान कैसे लोगों के दिमाग को क्लाउड कर देता है और वो जो है अंधे हो जाते हैं, उनकी सोच और समझ बूझ खत्म हो जाती है। तो अब ये ट्राइबल लॉयल्टी के चक्कर में लोग उसको फिर भी फॉलो कर रहे थे, इवन दो ही डिडंट मेक एनी सेंस। Tuleha became delusional, thinking that no one could defeat him. It was perhaps his arrogance more than anything else, which led to his quick demise. When he heard about Tuleha's claim, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam sent Dirar ibn al-Azwar radiallahu anhu to fight him. Dirar radiallahu anhu and his men, however, were no match for Tuleha's army. Even though he had become delusional, Tuleha did manage to gain a huge following, especially after the members of both Asad and Ghatfan tribes joined the ranks of his followers. अब ऐसा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला इसके बारे में, तो उन्होंने दिरार इब्न अल-अज़वर रदियल्लाहु अन्हु को तैयार किया और उनको कहा कि he has to go and fight तुलेहा। अब तुलेहा जो था ना, एक्चुअली ये इंसानी फितरत है, जब कोई आपके बहुत ज्यादा आपको आला हजरत समझने लगे और आपके बहुत फॉलोअर्स बन जाए तो आप भी दिल में आपके एक बार आता है और आप भी अपने आप को कुछ चीज समझने लगते हैं। उसमें ऐसा होता है कि अपने दिमाग पे, आंखों पे पर्दे पड़ जाते हैं और आपके पैर जो है वो जमीन पे नहीं लग रहे होते हैं। आपको लगता है कि बस आप एक बहुत बड़ी चीज है और आप लोगों से बेहतर हैं, यू आर बेटर देन अदर्स, और आपको बस अपनी एरोगेंस और प्राइड में आप चलने लगते हैं। नो वंडर, I would like to state here कि उमर इब्न खत्ताब की जब कभी भी कोई तारीफ किया करता था तो he used to use those words, वो दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यक़ूलून वग़फ़िर ली मा ला यअलमून वजअलनी खैरा मिम्मा यज़न्नून। यानी इसका मैंने पहले भी जिक्र किया, and I shared the दुआ in the group, if you want I can share it again, कि जब कभी भी उनकी कोई तारीफ करता था तो वो क्या करते थे, he used to say this dua, if I translate it, it means that Allah, don't take me into account for what they think of me and forgive me and them and make me better than what they think। यानी कितनी आजिज़ी और कितना खूबसूरत तरीका है कि अपने आप को, अपने दिल को समझाने का और अल्लाह से पनाह मांगने का, माफी मांगने का अपने लिए, लोगों के लिए। क्योंकि अगर एक राई बराबर भी प्राइड, रिया आ गई तो इट गोज इन द शिर्क कैटेगरी, एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन कि हम हमारे नेकियां जो हम इतने मुश्किल से कलेक्ट करते हैं, टूटी फूटी नेकियां हमारी जाया हो जाए बिकॉज ऑफ रियाकारी। तो जैसे ये तुलेहा को लोगों ने बड़े मकाम पे बिठा दिया था तो वो भी ब्लाइंडेड हो गया था, डिल्यूजनल हो गया था, एंड ही वाज थिंकिंग नोबडी कैन डिफीट हिम। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा दिरार इब्न अल-अज़वर को उससे फाइट करने के लिए, हालांकि दिरार का जो यानी तुलेहा's आर्मी वाज ह्यूज, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, असद और गतफान ट्राइब्स ने भी हैंड्स उनको ज्वाइन किया हुआ था। Anyways, after the Prophet's death, Abu Bakr radiallahu anhu had taken the task of dealing with Tuleha and his followers. He sent an army headed by Khalid ibn Walid radiallahu anhu, about whom Abu Bakr radiallahu anhu said, I heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say, Khalid ibn Walid is a blessed servant, a slave of Allah, and a blessed brother to his kinsfolk.
He is a sword from the swords of Allah. Allah unsheathed him and set him loose to fight against disbelievers and hypocrites. Seems कि Dirar ibn al-Azwar was not successful in beating up Tulaiha's army. तो अभी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हो गई थी तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने किसको भेजा? अपने बेस्ट men, अपनी बेस्ट रेजिमेंट अंडर दी leadership of Khalid ibn Walid. अब Khalid ibn Walid के बारे में क्या beautiful words. Of course, we all know he was considered as a sword of Allah. So again, Abu Bakr radiallahu anhu is mentioning कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि Khalid ibn Walid is a blessed servant of Allah and a blessed brother to his kinsfolk. यानी उनके ऊपर बहुत है अल्लाह की रहम करम और वो जो है एक रहमत है अपने लोगों के लिए भी और वो जो है तलवार है. He is a sword of Allah. अल्लाह अनशीतद हिम, अल्लाह ने उस तलवार को जैसे कहते हैं ना कि खुला छोड़ा हुआ है किसके अगेंस्ट में? काफिर और मुनाफिकों के लिए अगेंस्ट में. When Khalid radiallahu anhu was about to set out with his army from Dil Qissa, Abu Bakr radiallahu anhu announced that he would meet him along with the other army leaders on the border of Khaybar. Abu Bakr radiallahu anhu made this announcement hoping that it would reach the Beduins of the region and instill fear in their hearts. अभी खालिद इब्न वलीद जैसे निकलने लगे, जिल किस्सा इज द नेम ऑफ अ प्लेस, वहां से तो अबू बकर ने भी अनाउंस किया रदियल्लाहु अन्हु ने कि he will meet him with other army leaders, खैबर के बॉर्डर पे मिलेंगे. अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु थॉट कि द न्यूज़ विल गो अराउंड एंड द बेदून्स के जो आसपास के जो बेदून्स हैं उनके दिल में जो है खौफ तारी हो जाएगा. अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ordered Khalid radiallahu anhu to first go to Tulaiha and then to Banu Tamim. Meanwhile, Tulaiha was building a formidable army. Having gained the support of the Banu Asad and Ghatfan tribes, the Banu Abs and Dibyan tribes joined the ranks of his followers. Tulaiha was not one to rest on his laurels. Instead, he sought out new followers. He also sent a message to Banu Jadila and Gauth clan of the Tay tribe, asking them to join his cause. अब ये तुलैहा भी जो है वो कुछ ऐसा बंदा नहीं है जो लेजी अपने जितने हैं उतने में मुतमईन हो जाए, वो और ज्यादा ट्राइब्स को अप्रोच करने लगा. तो पहले उसके पास थे बनु असद और गतफान, फिर उसके बाद वो आगे और पहुंचा अब्स और दिबियान ट्राइब्स के पास, और अब वो बनु जादिला और गौद ट्राइब्स यानी तकरीबन 6 डिफरेंट क्लैंस और ट्राइब्स के पास वो पहुंचा ताकि उनकी आर्मीज को ज्वाइन करके बड़ी बनाए. बिकॉज नाउ ही नोज खालिद इब्न वलीद एंड अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु आर कमिंग विद अ ह्यूज सेट ऑफ रेजिमेंट्स. Thus, the tribe of the famous companion Adi ibn Hatim radiallahu anhu was in danger of falling under the spell of Tulaiha's false promise. In fact, many left Tay territory to join Tulaiha's army. Abu Bakr radiallahu anhu had by that time, and even prior to sending Khalid ibn Walid, sent Adi ibn Hatim radiallahu anhu to his people, hoping that he could convince them not to reject Islam. Abu Bakr radiallahu anhu की भी calculations as an army person was very good. So he knew कि तुलैहा कहाँ पर जाने वाला है, वो ताई टेरिटरी में जाकर वहाँ के ट्राइब्स को माइल करने वाला है. तो अबू बकर ने ऑलरेडी आदि इब्न हातिम रदियल्लाहु अन्हु को पहले से भेज दिया था ताकि वो उनको कन्विंस कर सके वहाँ के लोग और ट्राइब्स को कि वो इस्लाम को रिजेक्ट ना करें. Adi radiallahu anhu had pleaded with the people of Tai to pledge allegiance to Abu Bakr radiallahu anhu and to return to the fold. At first, they were indifferent, but they slowly softened their stance. It was around then that Khalid ibn Walid arrived with his army. अब आदि रदियल्लाहु अन्हु ने ऑलरेडी तय के लोगों को बोला था, उनको समझाने की कोशिश की कि वो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के साथ बैत करे और दीन में शामिल हो और उन इस्लाम के आर्मी के अंडर या थ्रू फाइट करे अगेंस्ट तुहैमा तुलैहा. बट यानी उनका दिल जो है थोड़ा नरम पड़ने लगा. उस टाइम तक खालिद इब्न वलीद की आर्मी अराइव हो गई थी. Khalid radiallahu anhu sent out an advance party of 2 men, Thabit ibn Arqam radiallahu anhu and Uqasha ibn Maysan radiallahu anhu. They were met on the way by a man named Hibal, who was the nephew of Tulaiha, and they killed him. Khalid radiallahu anhu ने आगे 2 और अपने आदमी को भेजा था जिनका नाम था थाबित इब्न अरकाम एंड उकाशा इब्न मैहासन. अब इनकी मुलाकात रास्ते में एक बंदे से हुई जिसका नाम हिबाल था. हिबाल जो था वो तुलैहा का नेफ्यू था. जैसे ही उन्हें पता चला, they killed him. Tulaiha was not a coward and quickly set out with his brother Salama to exact revenge for his nephew's death. And when they came across Thabit radiallahu anhu and Uqasha radiallahu anhu, they challenged him to duel. Tulaiha faced off against Uqasha radiallahu anhu and killed him. And Salama fought and killed his opponent Thabit ibn Arqam radiallahu anhu. अब ये हुआ कि वो जो नेफ्यू की मौत का बदला लेने के लिए तुलैहा along with his brother Salama उनके साथ निकल पड़े. He was not a coward, वो ब्रेव था. तुलैहा भी जो था वो fearful कैरेक्टर नहीं था.
अब ये जो दो बंदे खालिद रदियल्लाहु अन्हु ने भेजे थे, इनकी झड़प हुई इन दोनों के साथ, तुलैहा और सलमा के साथ, एंड दोनों ने इनको मार दिया. यानी तुलैहा एंड सलमा किल्ड उकाशा and Thabit ibn Arqam. After a short while, by which time Tuleha and his brother were far from the scene, Khalid radiallahu anhu and his men came across the corpses of their fallen brethren. It was truly painful for them to witness the loss of two such noble Muslims. May Allah reward them with the highest places in paradise. Amin ya Rab. अब ये मार के कत्ल करके उनको निकल गए. जब खालिद रदियल्लाहु अन्हु उधर पहुंचे तो उनको उनकी लाशें मिली और उनको बहुत दुख हुआ. फिर उन्होंने उनके लिए दुआ वगैरह की. एंड देन Khalid radiallahu anhu continued his march, intending first to attack the people of Tai. Either Khalid radiallahu anhu knew that many members of the Tai tribe had apostatized and he suspected it. What is for sure, however, is that he had to assess the situation of each tribe in the area. अब ये फिर से मार्च करने लगे और ये कौन सी टेरिटरी में पहुंचे? तय टेरिटरी में पहुंचे, जहां पर बहुत सारे लोग जो है वो मुर्तद हो चुके थे. एंड उनको इस बात का अंदाजा था, तो उनको जो है वहां पर जाके सिचुएशन असेस करनी थी कि तकरीबन कितने लोग या कितने ट्राइब्स जो होंगे हमारे अगेंस्ट होंगे. Furthermore, Abu Bakr radiallahu anhu gave clear instructions that he was to go first to the people of Tai. Before Khalid radiallahu anhu reached Tai, Adi radiallahu anhu went out to meet him. Adi radiallahu anhu wanted to save his people from destruction, so he had to speak carefully and wisely with Khalid radiallahu anhu. अब आदि जो है जिनको पहले अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने भेजे थे तय में, तो वो बहुत केयरफुल होकर खालिद रदियल्लाहु अन्हु के साथ यानी उन्होंने ओपन किया डिस्कशन, बिकॉज ही न्यू इट कि कुछ भी बात ऊपर नीचे होगी so it will lead to a destruction या war against his people. Adi radiallahu anhu said, give me 3 days. They have asked me to wait. They want to call back those of their fellow tribesmen that have already gone to Tulaiha. They say that once these fellow tribesmen return, they will openly follow you. This is because they fear that if they were to openly follow you now, Tulaiha would kill those among them that had already reached him. So is not the solution more beloved to you than for you to fight them and hasten them towards the hellfire? अब अदी ने उनको क्या सजेस्ट किया? कहते हैं कि आप हमें 3 दिन का वक्त दीजिए. हमारे जो लोग तुलैहा के पास चले गए, मैं उनको धीरे धीरे समझा बुझा के सारे ट्राइब्स को वापस कर बुलाता हूँ. जब वो वापस आ जाते हैं, फिर एक बड़े नंबर में वो लोग आपको ज्वाइन करेंगे. कहते हैं कि उनको ये खतरा है कि अगर हम तुलैहा के साथ ओपनली हमने अगर उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो भी हमको कत्ल कर देगा. फिर वो कहते हैं कि ये सोल्यूशन अच्छा नहीं है कि जंग करें हम और उन लोगों को जहन्नुम में जल्दी झोंकने के इंतजाम करें. इससे बेहतर कि हम पहले थोड़ा उनको चांस दें. Adi radiallahu anhu made a very good point that if Khalid radiallahu anhu fought them then and there, they would still be considered apostates and would therefore be headed towards eternity in the hellfire. But if he were to wait a few days, they would openly return to the fold of Islam and he would be able to enlist them to his army. तो आदि ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उनको एक्सप्लेन किया, लॉजिक एक्सप्लेन किया कि अगर हम उनको मार देते हैं तो वो फिर भी मुर्तद होते हैं, लेकिन अगर हम इंतजार कर दें तो शायद वो मुस्लिम आर्मी को ज्वाइन कर ले, तो इसमें ज्यादा खैर है. True to his words, Adi radiallahu anhu returned to Khalid radiallahu anhu after 3 days in the company of 500 fighters who all joined the ranks of Khalid's army. With these additional soldiers under his command, Khalid radiallahu anhu marched towards the Banu Jadila clan, which was a subdivision of the overall Thai tribe. But again, Adi radiallahu anhu counseled Khalid radiallahu anhu not to fight, saying to him, "O Khalid, give me a number of days so that I can go to them. Perhaps Allah will save them just as he saved Al-Gawth, the other subdivision of the Thai tribe that had recently returned to the fold of Islam." अब अपनी बात का मान रखें. आपको पता है ना कि वन ऑफ द सिफत्स ऑफ मुनाफिक इज कि वो अपने वादे पे खरे नहीं उतरते. तो सुभान अल्लाह, आदि जो थे वो एग्जैक्टली 3 दिन बाद पहुंचे और खालिद रदियल्लाहु अन्हु के पास वो 500 आदमी लेकर आए जो कि वापस से दोबारा से इस्लाम में दाखिल हो गए और आर्मी को ज्वाइन किया. अब खालिद रदियल्लाहु अन्हु की आर्मी के अंदर एक एडिशनल 500 सोल्जर्स के ज्वाइन होते ही उनकी ताकत और बढ़ गई. अब एक और सब डिविजन था कॉल्ड बनु जदिला क्लैन. तो फिर से वो जो है आदि रदियल्लाहु अन्हु अगेन आस्क्ड हिम कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं उनके पास जाता हूँ, शायद हम उनको सेव कर ले जैसे कि हम अल-गौथ, ये जो पहली जो ट्राइब थी तय की, कहते उसकी तरह हम इनको भी इंशाल्लाह बचा सकते हैं. So Khalid radiallahu anhu granted Adi radiallahu anhu his request, and Adi radiallahu anhu went to the people of Banu Jadila and was able to convince them that it was in the best interest to return to Islam. This was an important victory, for 1000 of their fighters joined the ranks of Khalid's army. अब आप देखें,
अगेन बात आ रही है कि किस तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से वो कन्विंस कर रहे हैं खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को, किस तरीके से वो जाकर ट्राइब्स को और क्लैन को कन्विंस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बिइज़्निल्लाह अब जो है 1000 बंदे आ गए हैं उनके तरफ से, तो पहले 500 और अब 1000, सो 1500 एडिशन इज अ वेरी गुड एडिशन। और वो जो है अब दूसरे नंबर पर ये कि वो इस्लाम में दाखिल हो गए, यानी वो एक मुर्तद या जहन्नम में फॉरएवर जलने की बजाय अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए एक आखिरा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितनी आसानी और खैर हो गई। तो ये एक देखा जाए तो इन अ साइलेंट वे it is a victory without fighting a battle. This was an important victory for 1000 of the fighters joined the ranks of Khalid's army. Truly, therefore, Adi radiallahu anhu was the best and the noblest member of his tribe. Indeed, it was by the grace and the mercy of Allah, and then by the efforts of the Adi radiallahu anhu, that the people of Tay were saved from apostasy and eternity in the hellfire. May Allah be pleased with him and with all the Prophet's companions. Amin ya Rab. यानी आप देखिए कितने खैर का एक बंदे की वजह से सुभान अल्लाह बिइज़्निल्लाह कितनी ज्यादा खैर हुई है। कोई खून खराबा नहीं, कोई कत्लो गारत नहीं, अच्छे से प्यार और मोहब्बत से सुकून और अमन से 1500 लोगों का दीन ईमान बच गया और वो मुस्लिम आर्मी को और ताकतवर करने में शामिल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस। बैटल ऑफ बुज़ाक़ा and the destruction of Banu Asad. Khalid radiallahu anhu led his men onward to Aja and Salma territory, where he encamped and prepared his army for battle. When he and his men set out again, they came face to face with Tulaiha's army at a place called Buzakha. The two opposing armies were not the only ones present at the scene of the impending battle. Many Bedouin tribes had also arrived to be the spectators. They felt it was too risky to take sides before the battle, so they decided to wait out the conflict and support the victors. अब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने आदमियों के साथ कहां पर पहुंचे? आजा, सलमा टेरिटरी पे। वहां पर उन्होंने अपना डेरा डाला और अपनी आर्मी को प्रिपेयर करनी शुरू किए। जब वो और उनके आदमी वापस से दोबारा चलने लगे तो उनका सामना तुलैहा की आर्मी से हुआ एक जगह पर जिसका नाम था बुज़ाक़ा। और ये दोनों आर्मी जो थी वो आमने सामने थी बिल्कुल, ये बिकॉज इनका जो बैटल था वो पेंडिंग था और बहुत सारे बेदून ट्राइब्स भी आ गए थे स्पेक्टेटर बन के। उन्हें क्या लगा? उन्हें ये लगा कि बहुत रिस्की है जंग से पहले किसी का साइड लेना, इसलिए वो वेट कर रहे थे कि जैसे कोई जीतेगा हम उसकी तरफ हो जाएंगे। आज भी आपको ऐसे सारे लोग बहुत मिलेंगे जिसे हम थाली का बैंगन कहते हैं, जहां पर देखा वजन ज्यादा है वहां पर डुलक गए। Tulaiha arrived with followers from his tribe, other tribes, and groups of individuals. This included 700 soldiers from the Banu Fuzara tribe under the leadership of Uwaina ibn Hisn. तुलैहा की फॉलोवर्स की ट्राइब और आने लगी और ज्वाइन होने लगी। 700 सोल्जर्स आए बनु फुजारा ट्राइब से और उसका लीडरशिप किसकी थी? उयैना इब्न हिसन की। When the two armies lined up for the battle, Tulaiha sat down at the rear of his army and wrapped himself up in his robes. He claimed that he wanted his soldiers to fight while he waited to receive revelation. The battle then began in earnest. अभी तुलैहा ने क्या किया? उसने अपने लोगों को जंग के लिए तैयार कर दिया और खुद जो है अपने आप को, अपने जो उन्होंने रोब पहना हुआ था, जो ड्रेस या गाउन था, उसमें अपने आप को रैप करके बैठ गया। कहता है मैं अपने सोल्जर्स को चाहूंगा कि फाइट करो और मैं यहाँ पर रुका हूँ ताकि मुझे वही आ रही है, मैं वही रिसीव कर रहा हूँ। द बैटल फिर शुरू हो गया। Uyayna ibn Hisn fought bravely until he became tired and decided to take a rest. He went to Tulaiha, who was still wrapped up in his robe, and asked him, "Has the angel Jibril come to you, Tulaiha?" He said no. Uyayna then returned to the battle. अब उयैना जो थे वो बहुत ब्रेवली ही वाज फाइटिंग। फिर उन्होंने रेस्ट लेने के लिए वो इधर आए और तुलैहा के पास गए। कहते हैं आप, वो अभी तक के अपने रोप में लिपटे हुए बैठे हुए थे, तो उनसे पूछा कि क्या एंजल जिब्रील आपके पास वही लेकर आए? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तक नहीं आए। तो उयैना फिर से बैटलफील्ड में पहुंच गए और फिर वापस आकर दोबारा से रेस्ट लिया। फिर आके उससे पूछा, उन्होंने कहा नहीं। थर्ड टाइम फिर आए, फिर दोबारा से पूछा कि जिब्रील अमीन आए? कहते हैं नहीं। तो then he asked, what did he say to you? Tulaiha gave a nonsensical response.
which was on Uwaina's estimation clear proof that Tuleha was nothing more than a charlatan and that his claims of prophethood was absolutely untrue. जब ये 3 बार सिलसिला हुआ, तीनों बार वो आकर पूछते हैं अभी आई वही अभी आई, उन्होंने नहीं 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 कहा, फिर उन्होंने आकर पूछा तीसरी बार तो उन्होंने कुछ ऐसे ही नॉनसेंसिकल अजीब सा रिस्पांस दिया, तो उसमें उसको आइडिया लग गया था कि ये जो है एक फ्रॉड है, चीट है, ये कोई भी प्रॉफिट वगैरह नहीं है। अब उवेना का हार्ट जो है वो चेंज हो गया। Did not abort Uwena's change of heart did not bode well for Tuleha. For Uwena ordered his 700 soldier men to retreat from the battlefield. क्योंकि जैसे ही उसको एहसास हो गया कि वो एक चीट का साथ दे रहा है, फ्रॉड का साथ दे रहा है, तो इमीडिएटली उसने अपने 700 आदमियों को पीछे कर दिया जंग से। Thus Tuleha's force were miserably depleted, but this was not the end of his woes. There was soon a chain reaction of soldiers fleeing. इसके बाद बाकी के सोल्जर्स भी भागने लगे, भागदौड़ हो गई। Chaos ensued as Tuleha's soldiers fled in all directions, with each man only concerned with his own safety. सब नफसा नफसी का मामला हो गया, उन्होंने सब जंग को छोड़ छाड़ के अपनी अपनी जानों को बचा के भागने लगे। इस वक्त तुलेहा जो थे वो घोड़ा पे सवार हुआ। For such an eventuality helped his wife An-Nuwar to mount a riding camel that belonged to him and fled toward Asham. अब उसने क्या किया, खुद घोड़े पे सवार हो गया, अपनी बीवी अन-नुवार को भी घोड़े पे सवार कर दिया, कैमल पे एक्चुअली, एंड देन अशाम सीरिया की तरफ निकल गया। द मुस्लिम आर्मी ने उसको खूब दौड़ाया, अटेम्प्टिंग टू कैप्चर एंड किल anyone they could find. Hearing news of the victory, finally alhamdulillah Muslim army की कामयाबी हुई। Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wrote a congratulatory letter to Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu stating, may Allah increase the goodness that he has blessed you with and fear Allah regarding all your affairs, for indeed Allah is with those who fear him and those who do good deeds. Be firm now and do not become soft. So if you come across any polytheist from the apostates who has killed even a single Muslim, exact revenge upon him. अल्हम्दुलिल्लाह अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन इब्न वलीद रदियल्लाहु अन्हु को कांग्रेचुलेट करते हुए अपने लेटर एक लिखा, उसमें उनको खूब तारीफ की, अल्लाह की हम्द सना की, और फिर उसके बाद कहा कि इस्तिकामत में रहो, सख्त रहो, सॉफ्ट नहीं होना, और आपके सामने कोई भी मुशरिक, कोई भी मुर्तद आए जिन्होंने एक भी मुस्लिम को कत्ल किया हो तो उनका रिवेंज एग्जैक्टली वैसा ही बनता है। फॉलोइंग अबू बकर's instructions, Khalid Radhiyallahu anhu and his army stayed in the area of Buzaqqa for an entire month. एक month के लिए पूरा वो लोग बुज़ाक़ा में थे। They pursued enemy fighters seeking revenge for those Muslims who had died in the recent battle and those Muslims who had lived among the apostates and had been persecuted, tortured or killed for their beliefs. In short, Khalid Radhiyallahu anhu was to make an example of the apostates so that no one in the region would reject Islam, persecute Muslims or wage war against Muslims' army. Those who were captured by Khalid radhiyallahu anhu were either burned to death, crushed with huge stones, or thrown off cliffs of tall mountains. News of this death spread throughout the region and terror was instilled in the hearts of other apostates and renegade tribes. अब exactly उन्होंने उनके instructions को follow किया और एक महीना वो बुज़ाक़ा में थे अपनी आर्मी के साथ। वो तलाश रहे थे कि कहीं पर कोई मुर्तद, कोई काफिर, कोई इस तरीके का मिले जिसने बिलीविंग मुस्लिम को टॉर्चर किया, बिलीविंग मुस्लिम को किल किया, बिलीविंग मुस्लिम को निस्तो नाबूद किया। उन्होंने फिर उनको पकड़ के प्रिजनर ऑफ वॉर्स बना के उनको फिर इधर उनको पत्थरों के नीचे क्रश कर दिया या उनको क्लिफ्स के या टॉल माउंटेन्स पे से फेंक दिया या उनको जला दिया, यानी उनको कत्ल कर दिया। एग्जैक्ट रिवेंज जैसा अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा था। इससे ये हुआ आसपास के जितने भी ट्राइब्स जो अपोस्टेट्स के आर्मी को ज्वाइन करना चाह रहे थे या चाह रहे थे कि वो खुद मुर्तद बन जाए, उनके दिलों में खौफ तारी हो गया। We love that as you love life. Khalid radhiyallahu anhu made the enemy understand the state of mind of his fighters with this simple, short message to them. Verily, I have come to you with a group of people who love death just as much as you love life. अब आप देखिए ये एक sentence, one sentence from Khalid radhiyallahu anhu regarding him and his men, two common men, कि आप जिंदगी से जितनी प्यार करते हो, ओके, जितनी मोहब्बत करते हो, ये हमारे आदमी जो है, हमारी जो आर्मी है, ये मौत से इतना प्यार करती है। अब आप सोचिए मौत से क्यों प्यार करती है? क्योंकि ये क्लियरली दीज आर दी फाइटर्स ऑफ इस्लामिक आर्मी, ये जो है अल्लाह की खातिर जंग कर रही है। किससे जंग कर रही है? जो अल्लाह के दुश्मन है। इनकी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इनकी दुश्मनी किससे है? दीन से है, इस्लाम से है, मुस्लिम से है, इस्लाम से है, और अपना इसमें पर्सनल गरज कोई नहीं है। तो ये स्ट्रेट वेज इंशाल्लाह क्या दर्जा इनको मिलता है? इनको मिलती है शहादत। तो ये जो शहादत है, ये उनके लिए ये वाली मौत जो है वो जिंदगी से ज्यादा बेहतर और खूबसूरत है।
तो कितना ब्यूटिफुली एंड कितना वेटेज और कितना वैल्यू रखता है ये स्टेटमेंट, और कितना पावरफुल है कि किसी नॉर्मल कॉमन आदमी के दिल में कितना खौफ आ जाए कि हम सब माशाल्लाह जिंदगी को बहुत प्यार करते हैं। आप देखें एक छोटा बच्चा भी होगा तो वो आपको पकड़ा रहेगा, आप उसको पकड़े हो, छोटे इन्फेंट को आपने पकड़ा हुआ है, लेकिन उसको गिरने का डर है तो वो भी आपको पकड़ा हुआ होता है, हालांकि उसका दिमाग कितना है, लेकिन जान से सबको प्यार है। दिस इज इन अवर फितरा। एक पॉइंट आता है जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी जान, अपनी जिंदगी, तो जान बहुत प्यारी है हम सबको, ये हमारे फितरा में है। लेकिन ये क्या है कि किसी को मौत जिंदगी से ज्यादा प्यारी है। क्या खूबसूरत मौत होगी वो, और क्या खूबसूरत दर्जात होंगे जो उनको मरना पसंद है, मरने से मोहब्बत है ना के जीने से। सो ही जस्ट गेव दैट सेंटेंस, verily I have come to you with a group of people who love death just as much as you love life. When they began to flee from the scene of the battle, Tuleha called out asking his men why they were fleeing. One of them said, each one of us hopes for his opponent to die before he does. We are facing a group of people who all want to die and be martyred before anyone else does. जब ये भगदड़ मच रही थी और इसके जो तुलैहा के जो आर्मी है वो भाग रही थी, तो उसने पकड़ा उनको, कहा क्यों भाग रहे हो? कहता है हम लोग सारे जो हैं वो क्या कोशिश करते हैं कि हमारे अपोनेंट जो हैं वो हमारी आंखों के सामने पहले मरे। कहते हैं हम लोग एक ऐसे ग्रुप ऑफ आदमियों को फेस कर रहे हैं जो खुद मरना और शहीद होना चाहते हैं। यानी कितना ज्यादा खौफतारी होगा जब आपके सामने कोई इस तरीके का बंदा है जो इतना निडर हो, जिसे मरने का डर नहीं, और जिसको मरने का खौफ खत्म हो जाता है, वो एक अलग लेवल, अलग टेंजेंट ऑफ फियरलेसनेस पे चला जाता है। तो ये उस कौम को बिलोंग करते थे, और उनकी जो वो इंटेंसिटी थी, जो शिद्दत थी उनकी, ये पावर की, ये किसी के सामने यानी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। एंड दे वर गेटिंग स्कैर्ड, टोटली स्कैर्ड, एंड दे वर रनिंग हेल्टर स्केल्टर। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे कि ये कैसे लोगों के सामने हम फेस कर रहे हैं जो मरने के ऊपर उतालू है। Along with Baqara ibn Hubayra and other prisoners, Khalid radhiyallahu anhu sent the following message back to Abu Bakr radhiyallahu anhu. अब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को खालिद रदियल्लाहु अन्हु एक मैसेज भेज रहे हैं बकरा इब्न उबैरा के साथ और अदर प्रिजनर्स के साथ। Verily, after having first turned away from Islam, the Banu Amir tribe has come back and have entered the fold of Islam after having plotted to destroy us. Verily, I do not accept anything in terms of an agreement from anyone who either fought against me or tried to make peace with me until they bring me those who attacked and viciously killed Muslims who lived in fear in their midst. And I have sent to you Baqara and his companions. Now what is he saying? वो कह रहे हैं कि यकीनन बनु आमिर ट्राइब जो है वो दीन से पहले पलट गई थी और अब वापस उसमें शामिल होना चाह रही है, और इन्होंने हमारे अगेंस्ट प्लॉट किया था कि हमको बर्बाद करें। मैं इनके तरफ से कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करता हूँ अग्रीमेंट के, क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ भी यानी हमारे साथ जंग की है और फिर हमारे साथ पीस ट्रीटी साइन करने की कोशिश की है, लेकिन इनको हमारे पास वो बंदे लाने पड़ेंगे जिन्होंने मुसलमानों को बहुत बुरी तरह से अटैक करके किल किया है। और कहते हैं इसलिए मैं आपके पास बकरा और दूसरे उसके कंपेनियंस भेज रहा हूँ। One of the prisoners was Uyayna ibn Hissan of Banu Fuzara tribe. To punish and to make an example of him, Khalid radhiyallahu anhu tightened Uyayna's shackles, having first tied his hands behind his neck. This was an especially humiliating and painful punishment, considering he would have to remain that way for the entire journey to Al-Madinah. Uyayna was further humiliated when he entered Al-Madinah. He was greeted by a crowd of jeering children who poked at him with their little hands, saying, O enemy of Allah, you have abandoned Islam. To this, Uyayna replied, By Allah, I never believed in the first place. अभी आप देखें वो जो उयैना नहीं था जिसने उनको मारा था, जो दो इनके बंदे गए हुए थे खालिद इब्न वलीद के, उनको कत्ल करके जो उन्होंने डाल दिए थे, तो वो वन ऑफ द प्रिजनर ऑफ दिस वॉर वाज उयैना इब्न हिसन, जिसको अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के पास भेजे खालिद इब्न वलीद ने। ये फुजारा ट्राइब के थे, ठीक है। अब इसको जो है खालिद इब्न वलीद को एग्जाम्पल बनाना था, तो उन्होंने क्या किया, उसके जो बेड़ियां थी उसको बहुत टाइट कर दी और उनके हैंड्स को जो है नेक के पीछे बांध के बिल्कुल टाइट कर दिया गया था। अब इनको ये पूरी जर्नी जो है इसी पोजीशन में जाना था। इट इज अ वेरी पेनफुल थिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग पनिशमेंट, पर एनीवेज
he was taken in that position itself. इससे और आगे बदतरीन उनके साथ क्या बिहेव हुआ कि जैसे ही वो मदीना में एंटर हुए तो छोटे बच्चे भी और सारे उनको पोक कर रहे थे और छेड़ रहे थे, कहते हैं कि आओ तुम दुश्मन हो अल्लाह के, तुमने दीन को छोड़ा। तो वो है ना, अभी भी देखेंगे उस एरोगेंस, देखें कैसा है। वो कहता है मैंने पहले ही एक्सेप्ट नहीं किया था इस्लाम, यानी दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानते हैं ना। इसीलिए अगर कोई मुनाफिक है तो वी नो व्हाट इज द ग्रेव पनिशमेंट फॉर दैट, क्योंकि ये बहुत हमारी जो कम्युनिटी सिस्टम है उसको बड़ा खोखला कर देती है, क्योंकि इनका जाती मफाद होता है। दे आर जस्ट देयर फॉर द सेक ऑफ मटेरियलिस्टिक गेन्स, ठीक है। तो इनके जो सेल्फिश मोटिव्स है, इसके वजह से पूरा सिस्टम जो है या जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर है वो वीक पड़ जाता है। सो ही इज स्टिल इन दिस पोजीशन ऑफ पनिशमेंट, ही नोज ही विल बी प्रोसिक्यूटेड, लेकिन अभी भी उसकी अकड़ देखें। वो कहता है मैंने पहले ही एक्सेप्ट कौन सा किया था दीन को। Then Uyayna was brought before the Khalifa of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and much to his surprise, Abu Bakr radhiyallahu anhu was kind and forgiving. Abu Bakr radhiyallahu anhu ordered his shackles to be unlocked, and then with kind words convinced Uyayna to repent. Uyayna, moved by Abu Bakr's treatment, made a sincere repentance and apologized for all his previous misdeeds. This time, Uyayna was sincere because he never turned away from Islam again and became an upstanding citizen and a good practicing Muslim. अब देखें कहानी में ट्विस्ट कैसा हुआ। अभी हम सब सोच रहे हैं कि डेफिनेटली अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इज इन्फॉर्मिंग खालिद इब्न वलीद इन हिज लेटर कि बिल्कुल रिवेंज ऐसे करना वैसे करना, बहुत सख्त रहना, सॉफ्ट नहीं होना। एंड नाउ जब उनका इन पर्सन उयैना से सामना हो रहा है तो क्या किया अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके मर्सीफुल और काइंडनेस एंड फॉरगिविंग वाला बिहेवियर दिया। इससे क्या हुआ, उसकी बेड़ियों को अनलॉक करने का हुक्म दिया और उसके साथ बहुत बहुत नरमी से पेश आए। और ये हुस्न खुलूक देखकर उयैना जो था उसने सिंसियर रिपेंटेंस कर ली, उसने सिंसियर रिपेंटेंस कर ली। और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बातें सुनकर उसके दिल में बहुत अपने अमाल को लेकर बहुत पछतावा हुआ और फिर उसने दीन को, इस्लाम को कबूल किया और उसके बाद वो कभी भी नहीं मुर्तद हुआ और कभी भी नहीं पलटा और एक बहुत अच्छा सिटीजन और एक गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बन के एंड तक रहा। सुभान अल्लाह। अब देखें, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, हम कभी भी जजमेंटल नहीं हो सकते। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ हदीस कि एक इंसान जो है, उसका मफहूम ऐसा है कि एक इंसान जो है वो नेकियां इतनी करता जाएगा कि वो सिर्फ एक आम की दूरी पर रहेगा जन्नत में जाने से, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह लाज़िम एक अमल उसके ऐसे हो जाएंगे कि वो सीधा जहन्नम में पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ एक आदमी इतने बदअमली करता है कि वो करता जाता है और वो जहन्नम की सिर्फ एक आम की दूरी पे होता है और फिर अल्लाह ताला उससे एक ऐसी नेकी करवा देते हैं कि वो सुब्हानअल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाता है। अब हमारे लिए इसमें क्या लेसन है? हमारे लिए इसमें ये लेसन है कि वी कैन नॉट बी जजमेंटल अबाउट एनीबॉडी। इनफैक्ट कुरान में भी इंसिडेंट हदीस भी है कि जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदुआ की थी, फिर अल्लाह ताला ने उनको मना किया थ्रू द कुरानिक वर्सेस, और फिर आखिर में जाके वो लोग मुस्लिम्स हुए। हालांकि उनसे बहुत बड़े बड़े गुनाह हुए थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी माफी कबूल की एंड दे बिकेम मुस्लिम्स। सो वी हैव एग्जांपल्स इन द कुरान एंड इन द हदीस। लेकिन हम लोग जो हैं आज भी, अभी भी हम जो है बैठे बैठे जन्नत और जहन्नुम लोगों को डिक्लेयर करते रहते हैं। we are in no position to be judgmental at all. हमें अच्छा गुमान ही करना है। हत्ता कि अगर कोई आपको अभी भी कोई इस्लामिक दुश्मन दिख रहा है, दीन का बहुत शदीद दुश्मन दिख, rather than making बदुआ for him, just make दुआ for हिदाया। और ये प्रिंसिपल आपका हर एक के लिए होगा। आपका शदीद से शदीद दुश्मन जिसने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, उसके लिए सबसे बेस्ट काम आप क्या कर सकते हैं? आप हिदायत की दुआ कर सकते हैं। बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनीवन। हमें अपने अमाल की हमें कोई पता नहीं है, तो हम दूसरों के बारे में जजमेंटल कैसे हो सकते हैं? हो सकता है जो हमें बहुत नेक नजर आ रहा है, अल्लाह की नजर में वो शायद नेक ना हो सकता है जो बहुत बदकारी कर रहा हो, लेकिन अल्लाह की नजर में वो करीब हो। इसीलिए हमारे पास हदीस में एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। वो औरत जो प्रोस्टिट्यूट थी, उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ताला उससे खुश हो गए, राजी हो गए। और एक औरत जो बहुत नेक थी, लेकिन वो जो थी, देयर आर टू इंसिडेंट्स एक्चुअली हियर। एक जिसके नेबर उससे राजी नहीं थे और एक जो जिसने कैट को गिरफ्त में रखा था और वो कैट जो भूखी प्यासी मर गई थी। तो देखें आप, अमली इबादत नजर आ रही है मगर दूसरे वाले अमल हमें नजर नहीं आ रहे। जलवत और खलवत, we don't know what's in the hearts of the people. So never ever be judgmental to anyone. किसी के बारे में जन्नत जहन्नम नेक बद कुछ नहीं बोलना। सबके लिए अल्लाह ही यहदीनी व यहदीकुम, अल्लाह ही इस्लाहकुम या रब। हमें अपने अमल, अपने डिपेंडेंट्स जो हमारे अंडर हैं, जिनके हम मसूल हैं ऑफिशियली, उनको आप
चेक में रखें, बट डोंट बी जजमेंटल। और अपने मुंह से हमेशा प्यारे और पॉजिटिव और अच्छे कलिमात निकालें। ईदर स्पीक गुड और रिमेन साइलेंट। तो जब कभी गुस्सा आए या कोई बद्दू आए या कोई गाली वाला मूड हो, जिप इट अप, ट्रिपल जिप्स, लॉक इट, थ्रो द की समवेयर। और जब दिमाग सुकून में आ जाए फिर आप बात करें। तो ना किसी के बारे में जजमेंटल होए। और एक हदीस, आई मीन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आई एम गेटिंग ऑल दिस, कि आप किसी के बारे में बुराई कर रहे हैं, वैसे भी गीबत और ये सब चीजों का आपको अच्छी तरह पता है कि भर भर के आप नेकियां अपनी दे देंगे और आखिर में जीरो हो जाएगा, बिकॉज आपने जिसके लिए गीबत की है तो एज इफ अपने मरे भाई का गोश्त खाने वाली बात, एंड देन अपनी नेकियां उनको देने वाली बात। दूसरा ये कि अगर आप किसी के ऐब बता रहे हैं, आया कर रहे हैं, अल्लाह सेज जब तक कि वो ऐब आपके अंदर नहीं आ जाएंगे तब तक कि अल्लाह ताला आपको मौत नहीं देंगे। And just imagine, I mean, I really get scared. May Allah protect us all. We women are actually involved in all this. May Allah protect us all, यार। कि हम किसी के बारे में बोले, देखो वो लड़की ना, हाँ हिजाब नहीं पहन रही, वो जा रही है, आप बड़ा अपने आप को नेककार समझ रहे हो। अल्लाह ना करे ऐसी कुछ अनौजुबिल्ला होगी चीजें कि आपका भी हिजाब उतर जाएगा, आप भी अनौजुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह लाजिम, कहीं ना कहीं से सिचुएशन आएगी अनौजुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह लाजिम, यू विल बी इन्वॉल्व इन द बदकारी। सो डोंट डू इट। अपने मुंह से अपने आप को, अपने बच्चों को अच्छा नेक बताना, दूसरों के ऊपर बहुतान लगाना छोड़ दें। नो नीड, यू डोंट नीड टू टॉक अबाउट ऑल दिस एट ऑल, जस्ट लीव इट। और जो लोग आपको ये कामों के अंदर इन्वॉल्व करते हैं उनको भी टाटा बाय बाय कर दें। सेव योर सेल्फ, सेव योर नेकियां, सेव योर सेल्फ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। हर बार आप जब नमाज के लिए 5 टाइम आप दिन में सलाह के लिए खड़े होते हैं, अपने आप को ये सारी चीजों से खत्म बरी करना है, क्लीन अप करना है, प्यूरिफाई करना है, एंड बी वेरी वेरी होपफुल and in love with Allah Azza wa Jal, and don't fall into the traps of shaitan. May Allah protect us all, and may Allah forgive us all, Ya Rab. Any questions? We have reached the time. Yes, Bashira, go ahead. अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। बस मैं एक हदीस कोट करना चाहती हूँ इसके बरक्स इंशाल्लाह। देखिए हजरत अभी जो हदीस का कोर्स चल रहा है ना, दौरे हदीस, किसी ने पार्ट लिया, उसमें माशाल्लाह बहुत प्यारा है। उसमें से एक हदीस ये है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया अंसार के एक बच्चे के जनाजे के लिए। मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशखबरी है उस बच्चे के लिए, ये तो जन्नत के चिड़ियों में से एक चिड़िया है, ना उसके कोई गुनाह किया, ना उसने कोई गुनाह किया और ना उसने गुनाह की उम्र को पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके अलावा कुछ और हो ऐ आयशा, अल्लाह ताला ने जन्नत के लिए जन्नत वाले पैदा कर दिए जबकि वो अपने आबा व अजदाद के पुश्त में थे, और अल्लाह ताला ने जहन्नम के लिए जहन्नम वालों को पैदा किया है जबकि वो अपने आबा व अजदाद के पुश्त में थे। ये इमाम मुस्लिम की हदीस है 124। माशाअल्लाह, इसके एक बच्चे के बारे में, अंसार के बच्चों एक बच्चे के बारे में ये बात है, यानी कि एक हमें स्पेसिफिकली हमें किसी को है ना नहीं बता सकते कि ये जन्नत में जाएगा कोई भी, यहाँ तक कि बच्चे को भी कहा गया। देखो ये बात, अल्लाह मुझे ये हदीस सुन के है ना इतने रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, सबको बचाए, बिल्कुल सही, आमीन या रब। बिल्कुल सही, जज़ाकिल्लाह खैर बशीरा फॉर एडिंग दैट अप। बट यही चीज का जो है हम मुद्दा डिस्कस कर रहे थे कि वी कैन नॉट बी जजमेंटल। सो अगर हमारे में से किसी में अगर ये ऐब है तो मे अल्लाह हेल्प अस आउट, बट इसके ऊपर बहुत वर्क करना पड़ेगा। यस रीन, यू हैड रेज्ड योर हैंड। नहीं, आई मीन ये जो अभी सिस्टर ने जो हदीस कहा ना, उनका वही है ना, वो सूरह अल कहफ में वो खिदर रदियल्लाहु अन्हु, वो जब वो बच्चे को मार देते हैं तो वो सरप्राइज हो जाते हैं। जी जी, सेम थिंग। या वी कैन नॉट सी, कई बार ना हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसको कंक्लूड नहीं कर सकते, इवन दो समटाइम्स लाइक वी हैव एग्जांपल्स इन द हदीथ एंड एविडेंसेस इन द हदीथ के अरे ये तो शहीद की कैटेगरी में जाएगा और वो, बट ये अटकलें लगाना छोड़ दें, बिकॉज अल्लाह आलम, हम लोग सिर्फ एक वो सरफेस पे देख रहे हैं, वी डोंट इवन नो द इनसाइड आउट ऑफ पीपल, ऑफ देयर अमाल, ऑफ व्हाट इज द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी अबाउट इट। लेकिन हम लोग जो है ना वो सिर्फ ऊपर से सतह पे देखकर हम लोग बन जाते हैं ओवरनाइट मुफ्ती। ये हमें नहीं बनना है, हमारा काम ही नहीं है। हम लोग ना फतवाज दे सकते हैं, ना हम जजमेंटल हो सकते हैं, ना हम जन्नत और दोज़ख की किसी को बता सकते हैं। इस्तगफार करें और अपने बारे में सोचें, अपनी मौत के बारे में। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कौन जन्नत में जाएगा, कौन जन्नत। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नॉलेज इतनी लिमिटेड थी, सुभान अल्लाह, तो हम लोग क्या चीज हैं, हम लोगों को बिल्कुल अपनी जुबानों के ऊपर ख्याल रखना है।
So never get into anything like that, because हमारे यहाँ पे बैक होम में बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर कोई मर जाता है तो सारे जी उसके जी ऊपर अटकलें लगाने शुरू सही बात करते है हैं। डोंट गेट इनटू ऑल ऑफ बेशक दोस, कभी भी नहीं आगे की पीछे की जिक्र करें, ना मरने वाले की बुराई करें, बस इस्तगफार करें, उनके मरने वालों की मगफिरत की दुआ करें, दैट्स इट। किसी भी चीज का डिस्कशन ना करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो, कल थर्सडे इंशाल्लाह वी विल हैव वन मोर लेक्चर, एंड हार्डली आई थिंक within next week, before the weekend inshallah we'll complete it. फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं, we will start ar-Rahiq al-Maktoum, और उसके बाद इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह ताला टाइम में बरकत दे, हयाती दे, सेहत दे, हम लोग फिर इंशाल्लाह उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की स्टोरी लेंगे, ठीक है। तो दैट्स द प्लान ऑफ एक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। अगर कोई गलती है तो मैं अल्लाह फॉरगिव मी, एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको कबूल करे या रब। माशाल्लाह बहुत बहुत नया नया सुब्हानकल्लाह। सॉरी बशीर, आई डिडंट हियर यू। क्या? बहुत बहुत नई नई चीजें हमें पता चल रही हैं आपके दर्शों से, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान में अल्लाह ताला इजाफा अता करे। आमीन आमीन। बस अल्लाह कबूल करे, और इंशाल्लाह अल्लाह हमसे राजी हो, जन्नत अता करे, और हम जन्नत में भी इकट्ठे हो, आला दर्जात पे, मुकर्रबों में अल्लाह ताला हमको शामिल करे या रब, ठीक है ना। तो आमीन। इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात सिस्टर्स। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।